Hello students, how are you? I hope that you are fine, safe and healthy. And today is my third class of the complex number. In the last two classes, we were already discussed about the theoretical part and some numericals related to joint entrance examination. Today I will also do some numericals, but before going to numericals, I have to explain one important theorem. The you have to just need to know only the statement of the theorem and not the proof, because the proof is not included in your syllabus. Okay, so without wasting your time, let us start today class. And those who are the new students or who have the new one who is watching today, so all of you are requested, please watch the previous classes also, because the concept and the theoretical portions we are already discussed on that two videos. So before watching today class, you must watch that two video also, because while solving the numericals you need to know the theoretical region, theoretical concept. Okay, so let's start today class. First question is, solve I to the power 2023, solve I to the power 2023 plus I to the power 2024 plus I to the power 2025. Now at first you solve this question. Next, after this sums, I am discuss one important theorem. Okay, so how can you solve these questions? Already I was discussed in the last classes that while solving the iota questions, you have to just form the power as an even number or a multiple of 2, or it can be a multiple of 4 also. Okay, so how can you solve this problem? So at first here what we see, that if we take common I to the power 2023, so how can I write 1 plus I square, isn't it? It can be written as like this, because when you split this power 2024 as 2023 plus 1 and 2025 as 2023 plus 2, so and while taking 2023 you will get this expression. Okay, now after that you have to just put the value of I square. We know that the value of I square is -1, isn't it? So just you have to put that value here. So I to the power 2023, 1 plus I minus 1. After this one and this one will be cancelled out. That means I to the power 2023 into I. It can be written as I to the power 2024. Now I to the power 2024 can be written as I to the power 4 into 506. It can be written as like this, 4 into 506. When you multiply 506 by 4, what you will get? 6 4 are 24 and 5 2 are 20. Now this can be written as I to the power 4 whole to the power 506. What does it mean? 1 to the power 506, and it ultimately comes 1. So this is the answer, isn't it? Is it clear to everybody? हिंदी में अगर हम बोले तो ये आप लोगों का आई का पावर 2023 प्लस आई का पावर 2024 प्लस आई का पावर 2025 है. अब इसको क्या करना है, हमको पहले कॉमन लेना है. हम ऐसे ऑलरेडी पिछले क्लास में भी बोले थे. कॉमन लेने से क्या होता है कि हम लोग का सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. तो आई का पावर 2023 अगर हम कॉमन ले लें तो हम लोग का क्या बचेगा? आई 1 प्लस आई स्क्वायर. अगर हम इस पावर को स्प्लिट करेंगे, आप लोग पीओ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ इंडिसेस आता है. अब यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यहाँ बैठा देंगे तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आई बचेगा. तो आई का पावर 2023 इंटू आई मतलब आई का पावर 2024. 2024 को लिख सकते हैं 4 इंटू 506. ठीक है, 4 इंटू 506, और फिर इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखा जा सकता है. क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज तो आप पूछिएगा. किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेरीज हो इस क्वेश्चन पे तो आप लोग पूछिएगा. ओके, you can also share your doubts in the comment box of the YouTube. So those who have any doubt in any step regarding this sums, so you can ask in the comment box. Okay, come to the next questions. Before going to the next question, at first we have to discuss an important theorem, and that theorem is known as De Morgan's law or De Morgan's theorem. What the theorem said. Now can I rub this? And all of you are requested that while seeing this video must kept a copy and pen with yourself, because if you only watch the video, it is not helpful for you. Okay, so जब भी आप
इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन अपने पास लेके बैठिए और उसको उतारिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसीलिए हम लाइव क्लास मैथ्स का जल्दी लेते नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं जिससे आप लोग पॉज करके देख सके। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अगला एक थ्योरम लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? हम रब कर रहे हैं इसको। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलते हैं? व्हाट द थ्योरम सेड्स? डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स थ्योरम ये बोलता है क्या कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका होल टू दी पावर n अगर है तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ओके, ये हम लोगों का एक लॉ है कि अगर पावर में रहेगा तो वो n थीटा और साइन n थीटा में आ जाएगा। ये हम लोग के थ्योरी में नहीं है, मतलब इसका कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमको हेल्प लगेगा जिससे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और एक हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि e का पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये याद रखिएगा, e का पावर आई थीटा का फॉर्मूला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि पढ़े थे पोलर फॉर्म में z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हम लोग का था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? r e का पावर में आई थीटा लिख सकते हैं, r e का पावर में आई थीटा। कैन आई राइट इट हियर? इसको हम लोग लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि e का पावर आई थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि z जो होगा वो z क्या होगा? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, r मतलब मॉड z, ये आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा? r e टू दी पावर आई थीटा हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो कोई भी न्यू स्टूडेंट है इस चैनल में, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी स्टूडेंट इसमें से जुड़ सके और भरपूर लाभ उठा सके। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एनी क्वेरीज अगर हो या कोई भी चीज़ का दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आया बस समझ में? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही हम लोग को लॉ थोड़ा जानना था, तो इसीलिए हम ये चीज़ लिखे हैं क्योंकि अभी जो सम सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज़ लगेगा, ठीक है। ये थ्योरी वाले क्लास में ये मिस्ड हो गया था बताना मेरे को, इसीलिए हम अभी डिस्कस कर दिए। ओके ओके, और एक बात आपसे कहेंगे कि हम लोग का क्लास वीक में 2 दिन होगा, ठीक है, वीक में 2 दिन होगा। और आज वाला क्लास तो हो सकता है रात को अपलोड हो या शाम को अपलोड हो, लेकिन इसके बाद से जितने भी क्लासेस अपलोड होंगे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को छोड़कर सभी क्लास आपको सुबह 11 बजे तक यूट्यूब में देखने को मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। और हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क इश्यूज इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लाइव क्लास ले नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लास भी एक लिया जा सके जिससे आप लोग का डाउट सामने सामने पूछे कि क्या दिक्कत है या नहीं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन जब तक नेटवर्क इशू हो रहा है या जब तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व हम नहीं कर पा रहे हैं तब तक के लिए आप लोग के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड होंगे कल से सुबह 11 बजे तक, आप लोग देख पाइएगा। तो आज मंडे है, मंडे का क्लास आप लोगों को आज देखने को मिल जा रहा है रात तक। अब नेक्स्ट जब वेडनेसडे आएगा तो वेडनेसडे को आपको क्लासेस सुबह देखने को मिलेगा। आया बात समझ में? और बिजनेस मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट को वीकेंड में ही अपलोड होगा वीडियो। अगर मेरे को समय मिलता है बीच में तो हम ऑब्वियसली एक क्लास का अपलोड कर सकेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे सबको समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर हो तो पूछिए, और अगर कोई डाउट या कोई क्वेरीज अगर नहीं है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को बोला गया है क्या कि हम लोगों को अब आर्ग्यूमेंट के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, राइट। आर्ग्यूमेंट के बारे में हम आप लोगों को बताए थे। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपसे बोला गया है कि 2 + 3i ये दिया हुआ है, इसको आपको आर्ग्यूमेंट z निकालना है। यू हैव टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट z ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आपको ये चीज निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे 2 + 3i का? तो यहाँ पे जब भी ऐसा कोई नंबर्स आप लोगों का है
तो आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब हमको एक्चुअली थीटा निकालना है, राइट। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या, लेट जेड इक्वल्स टू 2 + 3i, ये जेड हो गया। तो मॉड जेड हम लोग का, अच्छा मॉड जेड नहीं निकालने से भी होगा, तभी हम आपको बता दे रहे हैं मॉड जेड कैसे निकालते हैं। 2² + 3² यानी 4 + 9 यानी √13, ठीक है। अब यहाँ पे जेड के जगह अगर हम x + iy बैठाए तो x + iy हम लोग का 2 + 3i है। अगर हम इसको कंपेयरिंग करें तो x मेरा रियल पार्ट 2 हो गया और कॉम्प्लेक्स पार्ट मेरा 3 हो गया, ठीक है। x और y दोनों ही पॉजिटिव है, यानी ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो मतलब हम लोग जानते हैं क्या कि tan थीटा हम लोग का क्या होता है, y/x होता है, यही हम लोग का अर्ग जेड है। tan थीटा हम लोग का y/x है, अर्ग जेड मतलब थीटा होगा। तो यहाँ पे tan थीटा y/x, तो tan थीटा को हम लोग y के जगह पे 3 और x के जगह पे 2, तो थीटा मेरा क्या हो गया, tan इनवर्स 3/2। तो यही हम लोग का आर्ग्यूमेंट जेड हुआ, आर्ग्यूमेंट जेड हम लोग का क्या हुआ, tan इनवर्स 3/2, ये हम लोगों का आंसर होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो या किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर? तो अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अभी हम आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, ओके। आप लोग क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको, ओके। लिखिए क्वेश्चन, इफ जेड इक्वल्स टू, हो गया यहां तक, क्लियर है? ओके। अच्छा, क्वेश्चन है ये आपका JEE में आया है 2026 में, ठीक है। बोला गया है इफ जेड इक्वल्स टू, लेट जेड इक्वल्स टू दिया है क्या, जेड इक्वल्स टू 1 + i 1 + i 1 + 2i 1 + 3i, ऐसे करके दिया हुआ है, डॉट 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 1 + ni, ऐसे डॉट 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 करके 1 + ni, ये दिया हुआ है, ओके। 1 + ni, तो आपसे पूछा है i का मतलब √-1 ये दिया है। इफ मॉड जेड स्क्वायर, इफ मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू दिया है 44200, 44200 ये दिया हुआ है। आपसे पूछा है देन n इक्वल्स टू, देन n इक्वल टू क्या होगा ये चेक करना है, ये आपको फाइंड करना है। क्या दिया है क्वेश्चन, जेड इक्वल्स टू 1 + i 1 + 2i 1 + 3i डॉट 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 1 + ni। तो आपसे पूछा है क्या, इफ मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 44200 देन फाइंड n, तो आपको n निकालना है। तो n हम लोग कैसे निकालेंगे ये चीज अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो n कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पे n फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, पहला हम आपको प्रोसेस बता दे रहे हैं कि कैसे हमको ये करना है, और दूसरा ऑप्शन से कैसे हम सॉल्व करेंगे वो चीज बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मॉड जेड स्क्वायर दिया है, तो मॉड जेड स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये जो जेड है इसका मॉड वैल्यू, क्लियर है, ये जो जेड है उसका मॉड वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू, इसको अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, इसको एक साथ लिखेंगे तो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का साइन होता है, प्रोडक्ट k इक्वल्स टू 1 to n 1 + ki लिख सकते हैं कि नहीं। इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो एक्चुअली होगा, देखिए k के जगह पे 1 बैठाएंगे तो 1 + i 1 + i, k के जगह पे 2 बैठाएंगे 1 + 2i 1 + 2i, k के जगह 3 बैठाएंगे 1 + 3i हो गया, k के जगह जब n बैठाएंगे तो 1 + ni। तो ये प्रोडक्ट का सिंबल होता है, ठीक है। ये पाई नहीं है, ये एक्चुअली गामा फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग देखते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट का सिंबल है। गामा फंक्शन थोड़ा अलग होता है, गामा फंक्शन ऐसा होता है कैपिटल गामा जिसको बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग का प्रोडक्ट का
सिंबल है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसका क्योंकि ये स्क्वायर है, मॉड जेड स्क्वायर अगर हम करें तो दोनों तरफ मॉड जेड स्क्वायर अगर हम करें तो ये भी हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब मॉड जेड स्क्वायर हमको जो दिया है ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पे मॉड को हटाएं, अगर हम यहाँ पे मॉड को हटाएं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट k इक्वल्स टू 1 to n रूट ओवर ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, मॉड हटाने से होगा ये। तो मतलब प्रोडक्ट k इक्वल्स टू 1 to n 1 प्लस के स्क्वायर, ये होगा हम लोगों का। ठीक है, ये हम लोगों का होगा। अब हमसे पूछा है क्या, n का क्या वैल्यू होने से मेरा 44200 के साथ इक्वल होगा, ये चीज़ हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले k की जगह 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, ऐसे करके चेक करेंगे। तो n तक है तो उतना मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो सबसे बेटर चीज़ यही है, आप 44200 का फैक्टर्स निकाल दीजिए। 22400 का अगर हम फैक्टर्स निकाल दें तो हम लोगों का उम्मीद है कि सम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 44200 का फैक्टर्स मतलब एलसीएम के रूप में, जैसे हम लोग एलसीएम करते हैं, अगर हम एलसीएम करके करेंगे तो सुविधा होगा। ओके, तो पहले एक बार हम करके देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 1 बैठाएं तो 1 प्लस 1, 2 बैठाने से 1 प्लस 4 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 हो जाएगा 3 बैठाने से, फिर होगा 1 प्लस 16 4 बैठाने से, फिर 1 प्लस 25 5 बैठाने से। ठीक है, 6 भी बैठा सकते हैं, लेकिन हम 5 तक इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग का जो आंसर है वो 5 है। ठीक है, तो 5 तक हम यहाँ तक रुक गए, लेकिन यहाँ हम समझेंगे कैसे कि हमको 5 तक ही रुकना है। आप इसका फैक्टर्स निकाल के देखिएगा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17 इंटू 26। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालिए, 44200, इसको अगर हम 2 से डिवाइड दें तो 22100, फिर इसको अगर हम मान लीजिए 2 से ही डिवाइड दें तो यहाँ पे 11050। ठीक है, फिर इसको अगर हम 2 से डिवाइड दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5525, फिर इसको अगर अब हम 5 से डिवाइड दें तो 1105, फिर इसको अगर हम 5 से डिवाइड दें तो 2 यहाँ पे 10 हुआ, 221 हो गया। अब इसको यहाँ पे 221 अब किससे जाएगा, 221 3 से नहीं जाएगा। यहाँ पे आपका हुआ क्या, 5 देखिए 25 हुआ, 13 का टेबल से हो सकता है ये जाए। अगर हम 13 का टेबल से देखें, 13 या 17 का टेबल से, अगर हम 17 का टेबल से देखें तो 17 1 जा 17, 19 20 21 22 41 नहीं होगा, 17 का टेबल से ही नहीं जा रहा है। 13 का टेबल से 221 को अगर हम 13 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 221 को 13 से डिवाइड देने पर कितना आएगा, 221 को 13 से डिवाइड देने पर देखिए आ रहा है कि नहीं, हम कर रहे हैं यहाँ पे कॉपी में। देखिए 221 डिवाइडेड बाई 13, हाँ 13 से डिवाइड जब दे रहे हैं तो आ रहा है 17, 13 से डिवाइड दिए तो आ गया 17। ओके, तो अब देखना ये है कि हम लोगों का शायद अब ये मैच कर जा रहा है। देखिए यहाँ पर 13 इंटू 2 26, ठीक है, 5 2 जा 10 तो 26 हो गया, 10 हो गया, एक 5 बचा है 5 हो गया, एक 2 बचा है 2 हो गया, और 17 एक बचा था 17 हो गया। तो मतलब हम लोग का क्या हो गया कि n जो होगा वो हम लोगों का 5 होगा। आया बात समझ में, n जो होगा वो हम लोग का 5 होगा। आया बात समझ में, कैसे किए, इसको पहले एलसीएम निकाल के देख लिए कि इसका फैक्टर्स जो आ रहा है वो इसमें मैच कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ ये स्टेप करने से पहले आपको ये करना होगा, यहाँ से चेक कर लिए कि हाँ ये मेरा फैक्टर्स है, फिर उसके बाद यहाँ बैठा के देखिए कि मेरा कितना दूर तक n जा सकता है। आया बात समझ में।
क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज किसी भी तरह का तो आप पूछिएगा। ओके, आया बात समझ में? कोई भी दिक्कत हो या किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आप लोगों को एक और चीज कहेंगे कि अगर हम दूसरा तरीका से बोले तो आपके पास जो ऑप्शंस है, ए में मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 ऐसा करके जो ऑप्शंस है यहाँ बैठाएंगे। और मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में 3 बैठाते तो 1 + 3i होता, तो 1 + i, 1 + 2i, 1 + 3i, इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है, फिर उसका मॉड निकालते, मॉड निकाल के फिर चेक करते, तो अगर उसमें 44200 आ जाता तो वो मेरा आंसर होता। तो तरीका बहुत सारा है करने का, लेकिन तरीका तो हम बहुत सारा कर ही सकते हैं, लेकिन हमको पहले बेसिक जानना होगा कि हम करेंगे कैसे समझो। आया बात समझ में? तो पहले हम लोग इसका क्या किए हैं, यहाँ तक तो ये है प्रोडक्ट साइन, इस पूरे को हम लोग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसीलिए स्क्वायर किए तो ये मॉड स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये मॉड हटा तो रूट ओवर आ गया, ये स्क्वायर और रूट हट गया तो 1 + k² आएगा। आप k की जगह पे ये वैल्यू बैठा दिए, वैल्यू बैठा दिए, कैलकुलेट किए। ये आपको एलसीएम करके चेक करना होगा। आया बात समझ में? ये 2026 का जॉइंट का क्वेश्चन है, ये 2026 का जॉइंट का क्वेश्चन, हाँ, जनवरी शिफ्ट का। आया बात समझ में? कैसे हुआ समझ? यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आप लोगों का पूरा हेल्प करने का ट्राई करेंगे। ओके, और जो क्लास जूनियर क्लास के बच्चे हैं, क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के, पवन साइंस मैथ्स लैब बोलकर एक चैनल है, आप उसमें जाके क्लास 10 तक का जितना स्टडीज़ है वो आप देख सकते हैं। उधर पे भी बहुत कुछ क्लासेस हो रहे हैं, आपका मैथ्स हो रहा है 9-10 का, फिजिकल साइंस हो रहा है, लाइफ साइंस भी थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ हो रहा है, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं जो जूनियर स्टूडेंट है। और जिसको बेसिक से मैथ्स जानना है वो भी वहाँ पे जाके आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो पूछिएगा। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके और भरपूर लाभ उठा सके। ओके, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कराने का, जिससे क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। आया बात समझ में? ओके, तो अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं आप लोगों को, बोले क्वेश्चन है फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ, मिटा रहे इसको, लिखिए क्वेश्चन हम बोल रहे हैं फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 1 √3 + i बाई √3 - i, ये है क्वेश्चन। ठीक है, √3 + i बाई √3 - i, ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। आया बस समझ में? समझ में आया? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रैशनलाइज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, √3 + i इंटू √3 + i होल डिवाइडेड बाई √3 + i, सॉरी माइनस i होगा यहाँ पे, √3 - i इंटू √3 + i। अब यहाँ पे √3 + i हो गया √3 + i का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। तो मतलब √3 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 3 + 2 इंटू √3 इंटू i प्लस i का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ -1, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा 2 + 2 √3i बाई 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + √3i बाई 2, तो यहाँ पे हो गया 1/2 + i इंटू √3/2।
तो ये हम लोग का क्या है, एक्चुअली x प्लस आई वाई है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर अलग करेंगे तो x इक्वल्स टू 1/2 हो गया, y इक्वल्स टू √3/2 हो गया। ठीक है, अब हमको आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या होगा, y/x। अब सबसे पहले हमको चेक करना है कि x और y कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट का अलग अलग सिस्टम है करने का। तो क्योंकि x और y दोनों ही पॉजिटिव देख रहे हैं, तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y की जगह पे √3/2 बाई x की जगह पर 1/2। तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 मतलब tan इनवर्स tan कितना में आता है, tan आप लोगों का √3 60 डिग्री में आता है, तो मतलब π/3। तो π/3 हम लोगों का आंसर होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, π/3 होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरीज या किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं, अगर आप बेसिक क्लास किए हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मुझे आशा है। ओके, और अगर तब भी किसी को अगर डाउट है तो मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों को डाउट क्लियर करने का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हो सके तो आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी में उतारिएगा। ये सभी क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट है। हम जॉइंट और नॉर्मल क्लासेस का दोनों का वीडियो, मतलब आपको जो एच है जो एच क्लास है, एच का भी सम्स करा रहे हैं जैसे कि ये अभी एच का सम्स किए हैं। इसके पहले जो था वो जॉइंट का क्वेश्चन किए थे। हम जॉइंट का जो कराएंगे वो लिख देंगे कि जॉइंट का है, और जो एच का कराएंगे उसमें हम लिखेंगे नहीं, तो मतलब समझ जाइएगा कि ये एच का है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ नया किए नहीं है, हम जस्ट रैशनलाइज किए हैं, और आप लोग प्योर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को रैशनलाइजेशन आता ही होगा। ये तो क्लास 10 नहीं है कि आप लोगों को ये नहीं पता है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल्स टू 1 to 50, r इक्वल्स टू 1 to 50, i का पावर में r माइनस i का पावर में r प्लस 1। ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको क्या करना है, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब ये चीज ध्यान देना है, इसको हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन। समेशन मतलब एडिशन, और पिछले बार जो क्वेश्चन में था वो प्रोडक्ट था। ये जॉइंट का क्वेश्चन नहीं है, पहले बोल दे रहे हैं कि ये एचएस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे जस्ट हमको आर की जगह वैल्यू पुट करके देखना है। तो 1 से लेके 15 तक पुट करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अगर पुट करें तो क्या होगा, पहले 1 बैठाते हैं, i माइनस 1 प्लस आई का पावर 1 प्लस 1। अब 2 बैठाते हैं, प्लस i का पावर 2, फिर i का पावर में 2 प्लस 1। फिर 3 बैठाते हैं, i का पावर 3 माइनस i का पावर में 3 प्लस 1। ऐसे करते करते ये चलेगा, और लास्ट में i का पावर में माइनस, लास्ट में क्या होगा, i का पावर में 14 माइनस, अच्छा 15, i का पावर में 15 क्योंकि 15 तक जाना है, माइनस i का पावर में 15 प्लस 1। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो i माइनस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब माइनस आई 4 प्लस डॉट 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 प्लस आई 15 माइनस आई का पावर में 60। कैसे इसको कर रहे हैं देखिए, यहाँ पे जैसे i है, ये i 1 प्लस 1 है, मतलब आई स्क्वायर हुआ। ओके, फिर जब 2 बैठा रहे हैं तो ये आई स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 प्लस 1, जस्ट यहाँ पे वैल्यू उठा रहे। जब 1 बैठा रहे तो 1 और 1 प्लस 1, 2 बैठाने से 2 और 2 प्लस 1, 3 बैठाने से 3, 3 प्लस 1, वैसे करके 15 बैठाने से 15, 15 प्लस 1। इसी को अगर हम एक लाइन जस्ट ऐड किए हैं पावर्स, और कुछ नहीं।
अब ये आई स्क्वायर और ये आई स्क्वायर कट जाएगा माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसिल आउट बिकॉज द नंबर आर सेम बट ऑपोजिट इन साइन, so that's why it will be cancel out. Similarly, this I cube and this I cube is also cancel out. This I4 and this I4 also. So this sequence is continue. This sequence is continue up to the second last term because the term came to end at I to the power 16. This term come to end at I to the power 16. So the while follow this sequence, what will be the next step? I minus I to the power 16. This will be the next step. Because this I square and this I square cancel out, this I cube cancel out. Similarly, this I4 and the coming I4 will be cancel out. If there is I to the power 15, then before this step there will be minus I to the power 15 also, while putting r equals to 14. Isn't it clear? तो ये चीज हम लोगों का चलेगा. तो यहाँ पर I का I लिखे, I का पावर 16 को लिख सकते हैं 4 into 4. तो यहाँ पे I माइनस I का पावर में 4 होल टू दी पावर 4, तो मतलब I माइनस 1 का पावर 4 मतलब I माइनस 1. दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. ओके और यदि आप लोगों में से किसी को ऑफलाइन क्लासेस करने हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो या क्लासेस से रिलेटेड, तो आपको पूरा गाइडेंस कर दिया जाएगा. ओके तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर का वेराइटीज ऑफ सम्स है बुक में, तो आप लोग सम्स कीजिएगा क्योंकि हर एक सम्स करवाना ऑफलाइन क्लास रहता तो उसमें कराया जा सकता है. इस ऑनलाइन में हर एक सम्स कराना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो भी हमको ज़्यादा लंबा नहीं करना है जिसके वजह से इतना ज़्यादा सम्स करा दिए पॉपअप कर दें. हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन समझ समझ के करेंगे. हम हर एक वेराइटीज ऑफ सम्स करा दे रहे हैं. वैसे कोई ना कोई तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करते ही होंगे, तो वहाँ से फिर आप लोग अपना पूरा कर लीजिएगा. ओके तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आप बढ़ते हैं. और एक बात, नेक्स्ट क्लास ही रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट क्लास. ओके क्योंकि ज़्यादा प्लेलिस्ट हो जाएगा फिर एक चैप्टर्स के ऊपर. तो नेक्स्ट क्लास हम कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट रखने का, क्योंकि हर एक थ्योरी बता दिया गया है, हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और हर एक टाइप का सम्स भी हम लोग को करा दे रहे हैं. अब थोड़ा मोड़ा जो एक सम्स अगर बचा रहेगा तो उसको बाद में फिर एक सेशन लेकर कर दिया जाएगा. ओके तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग आपको बताते हैं. बोले क्वेश्चन यहाँ पे तक क्लियर है तो सबको कोई दिक्कत नहीं है तो ओके. तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं हम आपको. लिखिए क्वेश्चन. अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो भी जॉइंट का क्वेश्चन होगा और यही क्वेश्चन हम लोग का लास्ट होगा आज के सेशन का. ओके लिखिए क्वेश्चन हम बोल रहे हैं. बोले ओके क्वेश्चन है इफ s इक्वल टू if s equal to या लेट s इक्वल टू कुछ भी एक सेट दिया हुआ है z बिलोंग्स टू c. ये भी JEE का है 2026 जनवरी शिफ्ट. ओके जनवरी शिफ्ट का है. सी सच डैट ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है. सच डैट 4z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन दिया है. फाइंड करना है, फाइंड समेशन मॉड z स्क्वायर जहाँ पर हम लोग बोल पा रहे हैं z बिलोंग्स टू s, जहाँ पे z जो है वो s में बिलोंग किया है. ओके देखिए जॉइंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको सेट का भी
आप जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा जॉइंट क्वेश्चन दे रहा है आपको सब चीज़ का नॉलेज रखना होगा, सेट का भी क्वेश्चन मतलब नॉलेज रखना होगा, फिर आपको कॉम्प्लेक्स का भी रखना होगा। मतलब एक टॉपिक का अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएं तो हमको ट्रिगो, ज्योमेट्री, सेट सब कुछ यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब कैसे करेंगे, तो चलिए ठीक है, तो चलिए इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमको जहाँ तक ही लग रहा है पहले हम डिस्कस किए हैं, लेकिन वहाँ सेट नहीं था, वहाँ पे सेट नहीं था, वहाँ पे केवल शायद था 4z² प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का पहला टारगेट है क्या कि जेड को x प्लस आई वाई लेट करना, जैसे कि हम लोग आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ओके, तो आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरीका से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये हम लोग मान, तो जेड बार हम लोग का क्या होगा x माइनस आई वाई कंजुगेट का हो गया। तो यहाँ पे अब है 4z² प्लस जेड बार इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बैठा दें 4x प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस आई वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूला में बैठा दिए x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आई वाई प्लस x माइनस आई वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब इसके बाद क्या होगा 4x² माइनस 4y² माइनस 8x आई वाई एक्स वाई आई प्लस x माइनस आई वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो रियल पार्ट अलग कर दे रहे हैं, 4x² माइनस 4y² प्लस x इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट में 8xy माइनस y इक्वल टू 0। राइट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है या कोई क्वेरीज है? मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई क्वेरीज नहीं है। ठीक है, कोई क्वेरीज नहीं है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कराए थे जहाँ एक्स वाई का वैल्यू निकाले थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हम कराए थे। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों का 8x आई वाई है, ये 8x आई वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से y को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें 8x आई वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y को अगर हम कॉमन ले लें तो 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा और x हम लोगों का 1/8 होगा। y क्या होगा 0 होगा, x हम लोग का 1/8 होगा। ठीक है, अब जब y मेरा 0 होगा, अगर हम इस इक्वेशन में बैठा है तो हम लोग का क्या होगा, मतलब y जब 0 होगा तो हम लोग का क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे y मेरा 0 बैठा रहे हैं तो मेरा x भी 0 हो जाएगा। राइट, और जब x को हम लोग 1/8 बैठाएंगे तो y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा। ये चीज़ अब हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग y को 0 बैठा के देख रहे हैं। ठीक है, तो y को चलिए 0 बैठा के देखते हैं और फिर 1/8 बैठाएंगे बाद में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज या कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए y को हम लोग अब यहाँ 0 बैठा रहे हैं। तो चलिए y को 0 बैठाने से क्या होगा, पुटिंग y इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 0 अगर हम बैठाएंगे तो 4x² प्लस x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे, 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आया, एक 0 आया और एक 1/4 माइनस में आया। ठीक है, तो अब y 0 और x 0 बैठाने से हम लोग z को क्या माने थे, z को x प्लस आई वाई माने थे। ठीक है, तो जब x y दोनों 0 हो गया तो एक z 0 हो गया। कब, जब x और y, देखिए यहाँ पे y 0 बैठाए हैं और x भी 0। दूसरे पार्ट में जब y 0 है और x माइनस 1/4 है तो हम लोग का क्या होगा, z इक्वल्स टू x माइनस 1/4 प्लस आई इंटू 0। तो z हम लोग का माइनस 1/4 हो गया, दो वैल्यूज निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, 1/8 बैठा के चेक करना है। तो अब हम लोग अगर 1/8 बैठा के चेक करेंगे x के जगह पे तो y का वैल्यूज आएगा। तो यहाँ पे 1/8 बैठाते हैं, यहाँ पे कर रहे ओके। तो 1/8 अगर हम बैठाएं तो 4 1/8 यानी 1/64 ओके,
-4y² -1/8, सॉरी प्लस है तो +1/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 से ये 64 कट गया 16 बार में, तो -4y² इक्वल टू -1/8 -1/16। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हम लोग का -3/16, अगर हम गलत नहीं है तो यही होगा, राइट। और यहाँ पे -4y²। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, 4y² हम लोग का आया क्या, 4y² आया हम लोग का मतलब माइनस में 3/16। अगर हम माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 4y² हम लोग का हो जाएगा 3/16। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि y² जो है वो 3/64 है, y² 3/64 है। तो मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो y² हम लोग का 3/64 है, तो मतलब y का 2 वैल्यू है यहाँ पे, y का। हेलो स्टूडेंट्स, करंट ऑफ हो जाने की वजह से, टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास ऑफ हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या कि 4y² जो है वो हम लोगों का 3/16 हुआ, तो इस वजह से हम लोग का y² क्या हो जाएगा, 3/64 हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट 4 को यहाँ भेज दिए तो 3/64 हो गया, ओके। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है कि y² का वैल्यू आ गया है, तो सबसे पहले अब हम लोग को चेक करना है। पहले y को हम लोग क्या किए हैं, 0 बैठाए हैं। तो पहले जब y को हम लोग 0 बैठा रहे हैं तो मेरा x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है -1/4। तो पहले अगर हम y को यहाँ पर 0 बैठाए तो x भी 0 बैठेगा, तो z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए z को 0 हम लोग कर दिए। ठीक उसी प्रकार से अगर हम y को 0 बैठा रहे हैं और x का क्या बैठा रहे हैं, -1/4, यहाँ -1/4 बैठा रहे हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो z का वैल्यू आ गया -1/4, ठीक है। तो z का 2 वैल्यू आ गया। अब जो यहां से y² आया है 3/64, ये चीज हम लोग वापस कहां बैठाएंगे, z में बैठाएंगे। तो मेरे को तो y नहीं मिला, y² मिला है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मॉड का स्क्वायर करेंगे। तो मॉड z का स्क्वायर करने से क्या होगा, x प्लस iy मॉड का स्क्वायर। तो मॉड x प्लस iy स्क्वायर का मतलब x² प्लस y² हुआ, ठीक है। मॉड वाला जिसको नहीं पता है वो आप लोग पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो x² प्लस y² हुआ। अब x के जगह 1/8 बैठाएंगे तो 1/8 का स्क्वायर क्या होगा, 1/64। और y के जगह पे क्या बैठाएंगे, y² के जगह 3/64 यहाँ बैठा दिए हैं। इसको बैठाने के बाद सिंप्लीफाई किए तो 1/16 आया। तो ये 1/16 आया, किसका आया, 1/16 जो आया वो z² का आया, मतलब 2 z का वैल्यू आया 1/16। तो हर एक z का वैल्यू क्या होगा, 1/4 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक z को 1/4 लिखे और फिर इसको 1/4 लिखे, ओके। अब यहाँ पे ये दोनों z का वैल्यू आ गया। अब हमको पूछा था समेशन z बिलोंग्स टू s मॉड z²। तो पहला z का वैल्यू जो समेशन मतलब ऐड करना है, तो पहला z का वैल्यू 0 था तो 0 का स्क्वायर, दूसरा z का वैल्यू था -1/4 का स्क्वायर यानी 1/16, तीसरा और चौथा z दोनों z का वैल्यू 1/4 है तो 1/16 और 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब इसको क्या किए हैं, सबको ऐड किए हैं तो 3/16 हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हुआ, ओके। बीच में क्लास एक्चुअली क्या हुआ कि ये माइक मेरा बंद हो गया था, जिसके वजह से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको फिर समझ में नहीं आता, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि कब ऑफ हो गया। हम सम्स कर रहे थे उसी समय माइक ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक आज का सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं नए सेशन पे। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो बच्चे क्लास 9-10 के हैं या 5-6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक चैनल खोला गया है, पवन साइंस एंड मैथ्स लैब। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो चैनल का लिंक शेयर कर दे रहे हैं, आप उसमें जाकर छोटे क्लासेस का पढ़ाई कर सकते हैं। जिसको मैथ्स बेसिक से जानना है वो भी उधर पे जाके कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और हाँ, कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिए कमेंट बॉक्स में। और किसी को पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरीज हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिया गया, आप उसमें चैट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ाई को अच्छे कीजिए और अपने लाइफ को सक्सेस कीजिए। धन्यवाद। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।